ठंड बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, मतलब जरी नहीं जाती, इन्नी ठंड हो गई है। एक ठंड ने दिमाग खराब किया, तो एक यूके के ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ मतलब बहुत मन खराब होंदा कि हर बारी नवे रूल चक के ले आते हैं। तो जोड़े सफ़र करते हैं इमीग्रेंट सफ़र करते हैं, स्टूडेंट होवे या जोड़े वर्क वीज़ा ते आते हैं वो। तो चलो जोड़े वर्क वीज़ा ते आते उन्होंने तो सीन थोड़ा सॉल्व होंदा, सॉर्टेड होंदा कि उन्होंने कंपनी ने ऑलरेडी स्पॉन्सर किया होंदा। जोड़े स्टूडेंट आते हैं ना उन्होंने ज़्यादा तकलीफ होंदी है। हुण इन्होंने पहला की किया कि डिपेंडेंट वीज़ा भी खोलते, PSW भी चालू करते कि तुसी भी आ जाओ ना, स्टडी करो साडी कंट्री 'ਚ 2 साल का PSW लो, तो अपने डिपेंडेंट ते अपने परिवार नूं भी लै आओ। मैनूं लगदा कि इन्ने सारे लोग आ गए हैं ਤੇ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਲੈ ਆਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਭਰੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੀ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ PSW ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ID ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਕमेंट ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਸੋਲੀਸਿਟਰਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਸੋਲੀਸਿਟਰਸ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ UK ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ 10 ਰਾਸਤੇ ਰੱਬ ਖੋਲਦਾ। ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਜੋੜੋ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। पहला सिंसियरली पैसे जोड़ो अपने, तब फिर अगे स्टेप लो। दूसरी बात ये मैं उनको बताना चाहूँगा, जो बच्चे UK में ऑलरेडी आ चुके हैं अब रिसेंटली सितंबर इनटेक में, अपने PSW का फायदा उठाओ भाई। मतलब 2 साल का आपको PSW मिलेगा, वो तो अभी बंद नहीं करा है, वो रूल्स आपके ऊपर लागू नहीं होते। ये आगे सोच रहे हैं, ये कुछ इसके ऊपर भी डिसीजन ले सकते हैं। अब इन्होंने जो 26,000 तक का क्राइटेरिया था वो बढ़ा के 38,700 कर दिया। मतलब ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦਊਗੀ 38,700 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 38,000 ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮਸੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ 38,000 ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 38,000 ਦਊਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦਾ 38,700 ਆ, ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਹਾਸਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੜਪੜ ਕੇ ਕਦੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ 20,000 ਪਾਉਂਡ 25,000 ਪਾਉਂਡ ਭਰ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਸਾਲ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ।
मतलब साल 2 साल देखते ने तो फिर कहते कि ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਕੱਢੇ ਆ 38,700 ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਆ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ CQC ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ 15,000 ਪਾਉਂਡ 20,000 ਪਾਉਂਡ ਫੀਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ 9,000 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਚਲੋ ਫੀਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਜਦ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋੜੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਦ ਬੰਦਾ ਪੈਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੋ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਾਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਜੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ PSW ਤੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ PSW ਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਓ, ਪੈਸੇ ਜੋੜੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਓ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਵਰਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ मतलब ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ रहता है। सॉरी मैं ये वीडियो पूरी पंजाबी में बना रहा हूँ तो थोड़ी हिंदी भी मैं बीच में इंक्लूड कर देता हूँ कि बंदा यहाँ पे अकेला आया है, अकेला मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, खाने वाना सब अपना अकेला कर रहा है, ऊपर से पैसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर ये तनख्वाह भी ज़्यादा देती है तो टैक्स तो मतलब ऐसे अंधाधुंध टैक्स लेते हैं। दुनिया भर का तो हमसे ऑलरेडी टैक्स ले रहे हैं और ऊपर से फिर ये सैलरी बढ़ा के, क्राइटेरिया बढ़ा के फिर और ज़्यादा टैक्स काटेंगे। तो ये रूल फिलहाल तो अभी अप्लाई नहीं हुआ है। अभी ये नेक्स्ट ईयर स्प्रिंग यानी कि मार्च एंडिंग या अप्रैल से ये लागू हो सकता है, मतलब 90% चांसेस है। तो आपके पास अगर टाइम है साल भर का 6 महीने का, तो थोड़ा सा आप काउंट डाउन हो जाइए, पहले आने दीजिए, देखते हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन निकालते हैं। और आप अगर ऑलरेडी यूके में पहले से ही रह रहे हो तो कहीं ना कहीं ये रूल्स आप पर लागू नहीं हो सकते हैं, ऐसा भी है। और जो हम जैसे बच्चे आए हैं, जैसे मैं आया हूँ 2021 में, तो मैं अब न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में भी फॉल करता हूँ। तो ये भी आप ज़रा देख लीजिए, मतलब काफ़ी यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई है, ज़रा देखिए और थोड़ा रिसर्च करिए। मतलब पैनिक होके कोई भी डिसीजन ना ले, ये मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बनाने का मकसद यही था क्योंकि आप अकेले नहीं हो, यूके में हज़ारों ऐसे बच्चे हैं, हज़ारों लाखों ऐसे बच्चे आए हैं जो स्टडी बेसिस पे आए हैं और कईयों का PSW ख़त्म हो रहा है तो उनको वापस जाना भी पड़ सकता है। कईयों को कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है और कई तो बेचारे बच्चे अब जॉब ही ढूंढ रहे हैं, मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं और प्रॉपर जॉब नहीं मिली है उनको, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, वेयर हाउसेस में काम कर रहे हैं। तो आप ज़रा परेशान ना हो, यही मैं आपको सलाह दूंगा, सारे बच्चों को यही सलाह दूंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। क्या होता है ना, जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होती ना, हम पैनिक हो जाते हैं। जब हम धीरे धीरे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ें या फिर किसी की सलाह लें, अब आपको मैं अच्छी सलाह दूं कि आप सॉलिसिटर से विजिट करिए, उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उनको अपना स्टेटस सारा बताइए, आप क्या काम कर रहे हो, कब से आए हो यूके में, क्या डिग्री करी है,
तो ये सारी चीज़ें उनको बताएंगे तो शायद वो आपको मतलब अच्छी सी सलाह देंगे कि नहीं आप ये कैटेगरी में भी जा सकते हो या आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो अगर जस्ट इन केस आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो। मतलब कभी कभार तो समझ ही नहीं आता है कि ये करना क्या चाहते हैं। कोविड में ये इतनी तकलीफें से गुजर रहे थे कि भाई मतलब रिसेशन चल रहा है, ब्रेक्सिट के बाद इन्होंने सारे वर्कर्स जितने भी थे यहाँ पर उन्हें भगा दिया, सब आपस में अपने देश में चले गए और फिर उसके बाद वर्कर्स की शॉर्टेज आ गई, लेबर शॉर्टेज आ गई इनको। तो इन्होंने क्या किया कि चलो अब सारे इमिग्रेंट्स को बुलाते हैं, PSW देते हैं और उनको थोड़ी सी लालच देते हैं, यहाँ पर बुलाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आने दो डिपेंडेंट्स को भी, मतलब कैप अगर तुमको ऐसा लगता था पहले ही आप प्लानिंग प्रॉपर करके चलते हैं कि भाई डिपेंडेंट भी आ रहे हैं तो एक ही डिपेंडेंस आ सकता है या 2 डिपेंडेंट्स आ सकते हैं। अब इन्होंने कुछ कैप वगैरह लगाई नहीं थी, कोई सलाह वगैरह करके इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस पास नहीं किए। तो जितने भी लोग थे, अब ऑब्वियस सी बात है मैं आ रहा हूँ तो मैं अपनी बीवी को जरूर ले आऊंगा, मैं आ रहा हूँ तो अपने बच्चे, मेरे 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों को ही ले आऊंगा, 2 बच्चे छोड़ के थोड़ी आऊंगा। मतलब ऐसे ही ये जेन्युइन मेंटालिटी है यार लोगों की। मतलब अगर परिवार के साथ आना चाहते हैं, डिपेंडेंट वीजा आपने खोल के रखा है और परिवार के साथ अगर आ रहे तो सारे टब्बर को ही लेके आएंगे ना। मतलब ऐसा थोड़ी है कि तुम 2 बच्चे वहां पर रहो, मेरी बीवी वहां पर रहे, मैं मतलब मशक्कत कर रहा हूँ वहां पे, 4-5 साल के बाद देखेंगे क्या होता है। ऐसा तो नहीं है, जेन्युइन लोगों की मेंटालिटी है। ऑब्वियसली अगर इन्होंने आपने अगर मौका दिया है तो उस मौके का फायदा तो सारे लोग उठाएंगे ही। और अब आपको दिक्कत हो गई है कि भाई मतलब दुनिया भर के लोग आ गए हैं, पता नहीं कितने 100,000 लोग आ गए हैं, उसमें से कुछ ही लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग घर पे हैं। तो भाई अब दिक्कत क्या है, मतलब लोग रह रहे हैं, अपना कमा रहे, खा रहे, पी रहे आपको टैक्स मिल रहा है, थोड़ा सब्र तो रखिए, थोड़ी आपकी इकोनॉमी को तो ऊपर जाने दीजिए। मतलब बस आपके जो इलेक्शन आ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा तगड़ा वाला पासा फेंकना है कि मतलब जो लोग हैं, आवाम है, वो परेशान हो जाए। तो ये बात थोड़ी सी जमी नहीं मुझे। तो जो भी बच्चे अब आगे चल के यूके में आना चाहते हैं और सेटल होने का देख रहे हैं तो मैं उनको सलाह दूंगा सीधी सीधी कि भाई आप के लिए ये जो आपका डिसीजन है गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेटल होना बहुत मुश्किल है, यहाँ पर PR वगैरह लेना बहुत मुश्किल है। आपका अगर शॉर्ट टर्म गोल है कि भाई यूके में जाना है, डिग्री लेनी है और PSW में अच्छे खासे शरीर तोड़ के पैसे कमाने हैं तो आप जरूर आइए, मैं आपको सलाह दूंगा। क्योंकि अब तक इन्होंने PSW जो है वो बंद नहीं किया है, तो 1 साल की डिग्री के ऊपर 2 साल का वीजा दे रहे हैं और पैसे आप अच्छे खासे कमा सकते हो, दैट्स द फैक्ट। मतलब आपको थोड़ा सा सोच समझ के आना है कि आप जॉब कैसे ढूंढोगे, कहाँ रहोगे, कितने पैसे बचाओगे। मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये सारा एक्सपीरियंस हुआ है, कईयों को जॉब नहीं मिली है, कई तकलीफ में थे शुरुआती दौर में जब स्टडी कर रहे थे, और मैं भी उनमें से एक था। तो जहाँ पर काम मिला वहाँ पर काम कर लिया, मतलब कोई ना नुक्कर नहीं करी, मेहनत बहुत ज़्यादा करी, पैसे भी जोड़े, परिवार को भी बुलाया, मतलब वीडियोस देख लो, तो डंके की चोट पे सारी चीज़ें करी है। आप भी कर सकते हो अगर आपने कुछ गोल्स रखे हैं अपने, कुछ आपको अचीवमेंट करना है। रास्ते निकल आते हैं, परेशान हो गए तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, जहाँ पर प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन जरूर होता है और ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए। आप के आसपास देखिए, आप सॉलिसिटर से मिलिए जो यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं काफ़ी सालों से, उनसे सलाह लीजिए, बातें कीजिए, पहचान बनाइए, कहीं ना कहीं से रास्ते निकल आते हैं। और अगर आप देख रहे हो कि कोई केयर होम ही आपको स्पॉन्सर कर दे, तो अब मैं आपको बता दूं कि हर एक कोई केयर होम स्पॉन्सर नहीं करता है और ना कोई हर एक एजेंसी स्पॉन्सर करती है। ऐसे काफ़ी केयर होम्स है जिन्हें कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, केयर असिस्टेंट की ज़रूरत है और वो स्पॉन्सर करने को भी रेडी है, पर उनके भी सर्टेन क्राइटेरियाज है। आप कितने साल से रह रहे हो, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप स्ट्रेट अवे मुंह उठा के नहीं जा सकते और कह सकते हो कि भाई मुझे स्पॉन्सर दे दो, है ना। तो आपको सारी चीज़ें सोच समझ के करनी है। मैं तो इतनी सलाह दूंगा कि भाई मतलब शरीर तोड़ के मेहनत करो, अगर आप में जज्बा है कुछ करने का तो आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती है और रास्ते निकल आते हैं। ज़िंदगी यहाँ पर ही नहीं ख़त्म होती है,
मैं भी बहुत तकलीफ़ों से निकला हूँ और आज मैं बैठा हुआ आपके सामने वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, आपको चीज़ें बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। आपने सारे वीडियोस तो देख ही लिए होंगे कि नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, सारे यूट्यूबर्स ने नई नई वीडियोस डाली हैं। मतलब मैं भी इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हो गया था कि भाई 38,700 का इन्होंने जो क्राइटेरिया रख दिया है कि भाई इतनी आपकी तनख्वाह होनी चाहिए। नॉर्मल कैंडिडेट को तो कोई इतनी तनख्वाह नहीं देती कंपनी कि आप अभी ग्रेजुएट होकर के निकले हो, आपने जॉब अप्लाई करी है तो आपको कंपनी इतनी तनख्वाह देगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये जो तनख्वाह का जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है अराउंड जो सीनियर पोस्ट पे जो होते हैं उन्हें ये तनख्वाह ऑफर की जाती है। जैसे हम जैसे जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स होके निकले हैं तो नॉर्मली 26,000 या 24,000 या 23,000 मतलब 23 से 21 से लेके जो 28 के बीच में जो आपको तनख्वाह ऑफर की जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। और अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप सीनियर पोजीशन में अप्लाई करते हो तो आपको ये सैलरी तक ऑफर की जा सकती है, पर बड़ा मुश्किल है मतलब। तो ये इन्होंने सोच के ही रखा है कि जितने इमिग्रेंट्स आए हैं या आना चाहते हैं पहले तो उनको बंद कर दें, जो भी नए आना चाहते हैं, और जो ऑलरेडी यहाँ पर आए हैं उनको थोड़ा सा सफ़र कराते हैं। मतलब नए रूल्स एंड रेगुलेशन घुसा दिए कि भाई आप अपने परिवार से अलग रहो, आप शादीशुदा है तो बीवी बच्चों से अलग रहो, हैं। तो ये थोड़ी ना बात मुझे समझ में नहीं आई कि आप करना क्या चाहते हो। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पैनिक ना होए और सोच समझ के सलाह लें। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दोस्तों की बातें तो बिल्कुल ना सुने। आपको 50 दोस्त आपको अलग 50 बातें कहेंगे और आप 50 बार पैनिक होगे और टेंशन लोगे, तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप सिंपली सॉलिसिटर्स को विजिट करिए या फिर जो ऑलरेडी यहाँ पर सालों से रह रहा है, जो बहुत ही नॉलेज वाला बंदा है, जिनको सारे तौर तरीके, रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी चीज़ें पता है, उनसे आप सलाह लीजिए, उनसे बात करिए, सलाह मशवरा लीजिए और उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर हो, जो काम कर रहे हो फिलहाल वो काम करिए। नया साल आने दीजिए, दिसंबर का टाइम है यार, मतलब जो पुराना साल गुजर रहा है, जो भी आपने तकलीफ़ें वगैरह झेली है उसे ख़त्म होने दीजिए, है ना। सोच समझ के मतलब आप सलाह लीजिए और पैनिक ना होए, घर वालों को परेशान ना करें कि भाई ये कर दिया है, अब हमसे कुछ नहीं होगा, हम वापस आ रहे हैं। हाँ, जब तक आपने ट्राई नहीं करा है आप गिव अप कर दोगे तो क्या फ़ायदा है ना। गिव अप ना करें, सोच समझ के डिसीजन लें। और मैंने और भी वीडियोस बनाई है, वो भी देख सकते हो आप। और कुछ भी आपको सलाह मशवरा करनी है तो आप ईमेल कर दीजिए या कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर दीजिए। आपको जो भी चीज़ें पूछनी है वो बता दीजिए, मैं आपको कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और बस यही मोटिव था कि बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियोस डाल रहे हैं कि भाई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए, ये हो चुका है, वो हो रहा है। तो मुझे था कि मतलब मैं अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको मैं ये सलाह दूं कि पैनिक ना होए। यही वीडियो बनाने का मकसद था। सोच समझ के डिसीजन लीजिए और आपकी जो तकदीर में लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ऊपर वाले ने आपके लिए सारे प्लान बना रखे हैं, बस आप पैनिक होगे, उससे आप अपनी हेल्थ को तकलीफ दोगे या आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो ये फेयर नहीं है आपके लिए। तो सोच समझ के डिसीजन ले। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, look after your parents, look after yourself. See you in my next vlog.